Hello everyone, this is Rashika and today's video is really interesting and eye-opening. हम अक्सर बोलते वक्त कुछ छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो दिखने में ही छोटी होती है बट होती बहुत बड़ी हैं. So I'm gonna correct all those blunders you make while speaking in this video. So let's start. So the very first sentence we have here is she has been absent from Friday. Now look at this word Friday. That means a specific time. We are telling you a specific time. So here you will not use from. जब भी किसी specific time के बारे में बात होती है तब आप from नहीं यूज करते हैं. You will use since. She has been absent since Friday. Let's see the another one. Divided between children in class. Divided between children in class. Now look at this. Between और among. कि दोनों वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. Now what is between? Between क्या होता है? For example, this is something and this is something and there is something in between. जब दो लोगों के बीच में कुछ होता है या दो चीज़ों के बीच में कुछ होता है, then we will use between. लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके बीच में कोई चीज़ है, अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और उसके बीच में कोई चीज़ है, then we will not use between. तब हम between नहीं यूज़ करते हैं, we will use among. Divided among children in class. Let's see the another example. I did meet nobody. I didn't meet nobody. मतलब मैं किसी से भी नहीं मिला. अब ना what's the error in this? पहले आपने not का यूज़ कर लिया. Again you are using no. दो नेगेटिव एक सेंटेंस में कभी यूज़ नहीं होते हैं. I didn't meet. You will not use nobody. You will use anybody. I didn't meet anybody. एक जगह ऑलरेडी नॉट यूज हो चुका है, दोबारा से नेगेटिव नहीं, कभी भी नहीं. I didn't meet anybody. Let's see another sentence, that is open page 19 of your book. So how many of you are teachers here? Well, this is the most used sentence for the teachers. I mean, they use it a lot, but this is completely wrong. Open page 19 of your book गलत है. What we say, open your book to page 19. आप अपनी बुक खोलिए और किस पर जाइए, 19 पेज नंबर पे. ओपन योर बुक टू पेज नंबर 19 या ओपन योर बुक टू पेज 19. लेट्स सी अनदर सेंटेंस, दैट इज ओके, शी इज मैरिड विद अ सीए. मतलब उसकी शादी सीए से हो रखी है. सो इधर गलती क्या करते हो, विद इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस. विद नहीं यूज होता है, उसकी शादी हो रखी है. शी इज मैरिड टू अ सीए. ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर. शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर. टू वर्ड का यूज होगा, विद नहीं यूज होता है. नाउ लेट्स लुक एट द अनदर सेंटेंस. दिस रूम इज इनफ स्पेशियस फॉर मी. अब यहाँ पर क्या गलती है? This room is enough spacious for me. Well, the error here is word order. This room is spacious enough for me. ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा. This room is spacious enough for me. Are you understanding? किसी भी adjective से पहले हम ऐसे नहीं लगाते हैं. This room is spacious enough for me. Now let us look at the another sentence. Every student like the principal. अब यहाँ पर क्या गलती है? Here we are talking about each and every student. हर एक स्टूडेंट प्रिंसिपल को लाइक करता है, पसंद करता है. सो एक स्टूडेंट के, ठीक है, एवरी स्टूडेंट, हम हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं ना. सो हेयर वी विल यूज एवरी स्टूडेंट likes the principal. Every student likes the principal.
Now let's look at the another sentence, that is I have visited Ambala last week. Now what's the error in this? तो देखो हम have भी यूज़ कर रहे हैं और हम फिर specific time भी यूज़ कर रहे हैं. Have और specific time कभी भी साथ में नहीं आते हैं. Either you can say I have visited Ambala, that's finished. I mean that's a sentence, a complete sentence. I have visited Ambala. मैंने अम्बाला visit कर रखा है पहले. Or you can say I visited Ambala last week. मैं last week अम्बाला गया था, मैंने visit करा था. So whenever you are using have, either tell the only sentence. Don't use specific time. But if you are telling the specific time कि आप वहाँ कब गए थे, then don't use have. It will be I visited Ambala last week. Now let's look at the another sentence. He was boring in the class. अब sentence पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो कैसा फील कर रहा था क्लास में. We are not talking about the personality here कि वो क्या है, वो boring है, नहीं, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. He was boring in the class. मतलब इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि वो क्लास में कैसा फील कर रहा था. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ अ पर्सन ऑफ दैट ही. बट सेंटेंस के मुताबिक अगर बोर के साथ आईएनजी फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी पर्सनालिटी पर आ गए. बट यहाँ पे हमें पर्सनालिटी पे नहीं आना है, हमें क्या उसकी फीलिंग बतानी है, उसका इमोशन बताना है. तो ही वॉज बोर्ड. He was bored in the class. He was feeling bored in the class. He was bored in the class. He was boring नहीं आएगा, bored आएगा. वो क्लास में बोर फील कर रहा था, उसकी एक फीलिंग है जो हम बताना चाह रहे हैं सेंटेंस के द्वारा. Now let's look at the another sentence, that is the teacher which teaches here is from Delhi. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? जो टीचर यहाँ पढ़ाता है वो कहाँ से है? दिल्ली से है. बट वॉट इज़ द एरर हेयर? अच्छा, ये एरर बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं. सो प्लीज़ नोट दिस. द टीचर विच टीचेज हेयर इज़ फ्रॉम दिल्ली. विच, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, वी डोंट यूज़ विच. हम विच का यूज़ नहीं करेंगे. वी विल से द टीचर हु टीचेज हेयर. वो टीचर जो यहाँ पढ़ाती है वो दिल्ली से है. द टीचर हु टीचेज हेयर इज फ्रॉम दिल्ली. और यू कैन से द टीचर दैट. दैट इज ऑल्सो फाइन. दैट में भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन यूज दैट ऑल्सो. द टीचर दैट टीचेज हेयर इज फ्रॉम दिल्ली. द टीचर हु टीचेज हेयर इज फ्रॉम दिल्ली. विच हमेशा हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स. ओके. Now let's look at another sentence, that is Nikhil swam on Sunday. अब यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? निखिल के बारे में. लेकिन कब की बात हो रही है? संडे की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है, पास्ट टेंस में बात हो रही है. So is there any word as swim? कोई वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में swim? नहीं. अपने आप लोगों ने बना दिया है swimmed. पास्ट टेंस हो गई तो ईडी लगा दो. नहीं नहीं नहीं. स्विम की जो 3 फॉर्म्स हैं, दैट इज स्विम, स्वैम और स्वम. अगर हम फर्स्ट प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो स्विम, पास्ट टेंस तो स्वैम और पास्ट पार्टिकल हमारा आ जाता है स्वम. तो निखिल स्वैम ऑन संडे. तेरा था स्वैम ऑन संडे. Now let's look at our last sentence, that is could you send me these informations? क्या आप मुझे informations भेज सकते हैं? Now tell me why are we using informations? हम यहाँ पर informations की यूज़ कर रहे हैं. Won't you know information एक uncountable noun है. क्या आप information को count कर सकते हैं? नहीं count हो सकती है. That is an uncountable noun. So in this case we will not use information. Could you please send me? अच्छा, अब informations के साथ तो अगर आप informations कोई प्लूरल के बारे में बात कर रहे हो तो these ठीक है, बट यहाँ पे प्लूरल ही नहीं आएगा, वही गलत है. तो these तो गलत ही गलत है. Could you please
could you send me that information? We will not say these informations. Could you please send me that information? That's it for today. So don't make these blunders from next time, and please like, share and subscribe. Don't forget to subscribe. Like, share and subscribe.